एग्जीबिशन है। ये 60,000 स्क्वायर मीटर के दायरे में है और 800 कंपनियां जो हैं यहाँ पे अपने बिल्कुल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रदर्शित कर रही हैं। और यहाँ पे 15 अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं उनके पेविलियन लगे हुए हैं और 62 देशों से बिजनेस विजिटर्स हैं। तो एक तरीके से पूरा जैसे वो एक विश्व यहाँ पे भारत में उमड़ के आया है। और आप देखते हैं भारत सरकार का स्टार्टअप प्रोग्राम है। हमारा काम है कि किस तरीके से हम कंपनियों को, जैसे आप कह रहे हैं स्टार्टअप्स की बात करें, किस तरीके से हम स्टार्टअप्स को जो है जोड़ सकें हमारी इंडस्ट्री के साथ। तो एक हमारा टेक्नोवेशन का पवेलियन है जहाँ पे 25 स्टार्टअप्स अपने जो भी टेक्नोलॉजी हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले कर रही हैं। तो एक तरीके से काफ़ी उत्साह है, जैसा ही मैंने कहा। और तरह तरह के जितने भी इंडस्ट्री के जितने डिमेंशंस हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एकमा के महानिदेशक श्री विनी मेहता जी, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। I now have the privilege of requesting and inviting our chief guest, Shri Nitin Gadkari, Honorable Minister of Road Transport and Highways, to give his address. Actually, this is the industry which is giving maximum GST to the state government and Bharat Sarkar. This is the industry which has already created 4 crore 50 jobs and which is equally important for the country. This is the industry which is really most important contribution of this industry for our growth. And now, before 2 years, I already declared that within 5 years, we want to make this industry, automobile industry, number 1 in the world. We have got the potential. You have got the potential, and I am seeing that the way in which we are developing the technology, the innovation, the research, I am very much confident about it. I am always telling to people important 2 philosophies. One is knowledge to wealth. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth in the future. And the second important thing which is also related with your industry, that is no material is waste, no person is waste. It is depending upon the appropriate technology. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. Now today the finance minister has already declared about in the economic policy about the circulation economy. The scrapping is also important thing. Even the waste tire, now I have requested the environment minister to allow import of waste tires. Already they give the permission. Because from waste tire, the rubberized bitumen, we are taking rubber powder and we are using in bitumen. The bitumen rate is 50 rupees per kg and rubber powder coming to 25 to 30 rupees per kg. And actually it is going to improve the quality of the road. So my request to all of you, that in this circulation economy, how the industry is going to contribute, that is very important. Today, my request to all the people, particularly the stakeholders, that you can reduce the cost of your car or your scooters or everything by using this waste material, because it is going to reduce the cost of auto component by 30%. This is the time for all of you to cooperate, that we need to reduce our import. We need to increase our export. Even in the electric vehicle, now I got about to launch a luxury sleeper coach in Bangalore. So beautiful. So now I request them that you should start business class luxury coach. Now in Europe, all air conditioned beautiful double decker buses are there. If you can make on electric, it is a huge market.
You can make the business class. Presently in India, we have got 1,50,000 buses. But my market sense is telling to me, because we want to encourage public transport. If you can make comfortably a public transport, air-conditioned buses, double-decker buses on electric, 100% the requirement in India is 10 lakh buses. That is the potential. We have the state corporation. Horn छोड़कर सब बचता है बस में. Now we need to change that. And it is to be proven now, the electric bus tender we have received, the non-AC bus for 39 rupees per kilometer, and the AC bus is 41 rupees per kilometer. And diesel bus in Mumbai, the best is running, the cost is coming 115 rupees per kilometer. So just like London transport model, on the basis of that, I requesting all the manufacturers, you start your own NBFC and you finance the buses. You will get so business. There is a huge potential. And by making good roads, there is the time will be very less. This is the time that you can exploit the situation and make the business. But the most important thing with the industry is your export is every time going to increase. Our two-wheeler industry, they are 50% of the production they are exporting. And even the big brands, reputed brands in the world, they are making manufacturing in India. What the reason? Because of the cost of the production as compared with the other countries very, very less. They are getting more profits to making export from India. And that is the reason that they are making their manufacturing center in India. All the world reputed brands are now present. From 3.5% of our target to now close to 75% of the target in time span of less than 2 years. 3.5 to 75. That is the change. In buses, amazing. Mahua is sitting right there. She has been at the center of the feed. You know, we started with 5,450 buses that moved on. And what we could establish was amazing. That if the right model is adopted, right contractual model is adopted, probably the cost of, definitely, the cost of buses were exhibited. The entire cost was found to be less than that of the diesel, CNG and any of the other ones. That was amazing. When you say that you want to electrify the country, you bring about electrification of transport responsibly, that means a big thing. And we all know it all well, you see. Which industries survive? Industries that are committed to quality. Industries which are absolutely, they develop control over the supply chain. Industry that are globally competitive. Industry that is into ethical values. So an industry that is able to combine all four of them together, they are the only ones which survive. What should we do so that the cost of issue? तो इस तरह से आपने सुना, सुधेंदु सिन्हा जी ने सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को ये आगाह किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है और उसे लेकर सभी लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। नेशन फर्स्ट। पूरे वर्ल्ड में भारत का जो वाहन उद्योग है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जा रहा है। आरजेएस आज़ादी की अमृत गाथा का 116वां कार्यक्रम 12 जनवरी 2023 को ऑटो एक्सपो की थीम पर आधारित किया गया ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन मोबिलिटी समिट, ये सियाम द्वारा आयोजित किया गया। Production of the vehicles is more than 2.25 crores region. About 56 lakhs is exported and the rest is the domestic sales. This is a very huge number. The government of India is committed to making Indian automotive industry globally competitive.
to make it as an export hub. India itself is a huge market, but we would also like the R&D, the prototyping, the testing, manufacturing, the entire value chain of the automobile industry to be set up. And we are moving in that direction. Coming to the electric mobility, speakers before me have identified that we have reached the aim of net zero by 2070. And by 2030, we have to reduce our carbon emissions by 1 million tons of emissions. Then the Panchamrit, which has been laid out by our Honorable Prime Minister, all the 5 goals of decarbonization. And we are on the road to that. And electric mobility is an important part of it. Till 5th of January, about 5.2% vehicles sold in India were electric vehicles. And this number has risen from last year, it was about 2.6%. So the growth has almost doubled in numbers. Of course, most of the growth is coming from two-wheelers. We produce a large number of two-wheelers, but then also in buses. The Government of India has launched several schemes to promote the manufacture of electric vehicles in India. And one of them, the first one of them was the FAME scheme, the faster adoption and manufacturing of electric vehicles in India. After FAME 1, some lessons were learned, and FAME 2, the phase 2 was launched in April 2019. The FAME scheme is a demand incentive scheme. So as you know that the price of electric vehicles is a little higher than the ICE vehicles. And upfront subsidies offered to the consumers so that the cost reduces. And FAME scheme is geared towards shared mobility, towards public transportation. So a lot of subsidy for buses. There was a large number of people-use buses. And if you look at pollution levels in Delhi and also in the nearby areas, one of the aims is to reduce the emission levels in these big cities we have. So in buses, FAME offers up to 40% of the cost of the vehicle as subsidy. Up till now, about 7,000 buses have been subsidized under the scheme. And lots of them are on road. They are in various stages of coming. And I believe that in the next 1 year, all of these buses will be on road. And we have more plans to incentivize buses. Then, if we talk of public transportation, then electric three-wheelers. In three-wheelers, more than 50% of the sales are drawn from electric vehicles. ICE vehicles are little less than the number. In buses, about 17% buses are electric buses sold in India. But in three-wheelers, it is 54%. In two-wheelers, its number is less than 5%, but it's rising very rapidly. Last year, it was half of it, about 2.5 to 2.6%. So we realize that demand incentive is one way to increase the number of electric vehicles. But the other way is like on the supply side. We must look at the manufacturers. How we can help the OEMs. The commitment of NITI Aayog in policy formulation, the industry ministry's commitment in seeing the industry implementation of the policies, and state level, Bhiman Varsa, the implementation of the last mile registration of the vehicles and road tax related issues are commendable. Mike, you are a friend of Siam and you are the leader. You have been attending various electrification related discussions, discourse, and you have been always helping us. So your presence actually adds value to the discussion. We are targeting first, the road safety is our priority for sustainable mobility, and you will be seeing action on road safety. But notwithstanding the sustainable earth requirement point of view, our bio initiatives, electrification, and of course hydrogen initiatives coupled with fleet modernization and recycling is seen in a
4 important decarbonization initiatives. So one is electrification, which in Hindi national language translates Vidyutikaran. So today is the unveiling of the same initiative, and you will be hearing more under this key messaging. So we are extremely thankful to the all of us gathering present here, and you will be seeing the very electrified actions on the electrification journey of India. So we are very proud of your presence. Thank you very much. Sustainable mobility has been leading the charge both in commercial vehicles and passenger cars towards new mobility. At the Tata Group, we are engaged in 3 major transitions: the digital transition, energy transition, and supply chain transition. With its sculpted lines and iconic accents. You can also see that, of course, is the RX 500H, the F Sport Performance. Behind us there, you'll be able to see the RX 350H Luxury, which is the red color right there. I'm sure you'll have an opportunity to go have a look at it. So definitely make sure you do that. जय हिंद सर। जय हिंद। 16th ऑटो एक्सपो में जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दबदबा है, लगता है कि आने वाले दिनों में सन मोबिलिटी भी इस तरह के लॉन्च करने से कुछ आशा रख रही है कि इसी का फ्यूचर है क्या वाहन उद्योग में? वाहन उद्योग में ईवी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। 2027 तक 50% वाहन जो टू व्हीलर्स में ईवी होंगे और थ्री व्हीलर और 4 व्हीलर भी काफ़ी ईवी होंगे। सो सन मोबिलिटी आज ऑलरेडी 50 से 55 मिलियन किलोमीटर कर चुका है। दिन का आधा मिलियन किलोमीटर 5 लाख किलोमीटर चलाता है, तो बहुत अच्छा
मार्केट है। अनंत बरजात्या जी, हाँ जी। अगर इसकी जो चार्जिंग कॉस्ट है, आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर तभी है जब जो चार्जिंग का रेट है या बैटरी का जो है वो कुछ कम हो, तो उसके लिए कुछ हो रहा है क्या? सर बहुत काम हो रहा है एंड आप देखें कि कॉस्ट बैटरी की बहुत नीचे आ गई थी 2020 और 21 को छोड़ के, बट आगे भी अब क्योंकि इंडिया में भी PLI स्कीम आ गई है तो सेल बनने लगेंगे तो बैटरी की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। सो उससे आप अगर देखें आज भी तेल के मुकाबले फिक्स बैटरी बहुत और सॉफ्ट बैटरी बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। आप उनको देखते हैं TCO टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के मुकाबले सॉफ्ट बैटरी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। इसमें लिथियम बैटरीज जो है, क्या उन्हीं का फ्यूचर है? आज लिथियम आयन बहुत अच्छा है बट आगे बहुत और नई तकनीक आ रही हैं, सो सबका काम चल सकता है, बट आज अगले 5-6 साल 10 साल तक तो लिथियम आयन का ही फ्यूचर है। आनंद जी, 16th ऑटो एक्सपो में जो आपने लॉन्च किया उसके क्या साइलेंट फीचर्स हैं? सो हमने आज 2 चीज़ें लॉन्च की हैं। एक बैटरी जो 45% ज़्यादा पावरफुल है हमारी एग्जिस्टिंग बैटरी से, एक ही 2.1 किलोवाट आवर का बैटरी है। एक चार्ज पे एक टू व्हीलर के अंदर ही 80 से 100 किलोमीटर तक जा सकता है। आपको 100 किलोमीटर का एक बार में रेंज 2 मिनट एक मिनट के अंदर आपने स्वैप किया और आप 100 किलोमीटर चला सकते हैं उसको। ईवी का समय आ गया है। ये जो चीज़ अगले 5 साल में आपको ईवी हर जगह दिखेगा, सो वो उसमें जन बढ़ के इसको उसमें साथ देने का कोशिश करें। धन्यवाद। तो सन मोबिलिटी की तरफ से अनंत बरजात्या जी ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर बताया है, निश्चित रूप से आने वाला कल जो है क्योंकि इको फ्रेंडली होने वाला है, इसके लिए RJS पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो जो 16वां संस्करण है उसका कंपोनेंट मेला लगा हुआ है। यहाँ पे उनो मिंडा का स्टॉल है और आप देख सकते हैं उनो मिंडा के जो प्रोडक्ट हैं, ये कंपोनेंट्स जो हैं। तो अब हम अधिकारियों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मिंडा इंडिया ने अपने कंपोनेंट्स में क्या कुछ खासियत लेकर आए हैं। तो आइए उनो मिंडा के निर्मल मिंडा जी से ही बातचीत करके जानते हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान ये जो मेला लग रहा है और RJS पॉजिटिव मीडिया आज़ादी की अमृत गाथा का 117वां अंक जो है तो ऑटो एक्सपो के कंपोनेंट फेयर प्रगति मैदान में कर रहा है। तो निर्मल मिंडा जी बताएं कि आप स्वदेशी तकनीक को किस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं, कंपोनेंट्स की क्या खासियत है आपकी? नमस्कार। आज़ादी के इस महोत्सव पर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले ये आपका कार्यक्रम, और हम लोग एक स्वदेशी कंपनी है, 100% स्वदेशी कंपनी। हम लोगों का ये इंटेंट रहता है कि जो जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, नए नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, उनको किस तरीके से स्वदेशी बनाया जाए। और सिर्फ सेमीकंडक्टर इंपोर्ट हो रहे हैं और मुझे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की जो ये पैशन है, उनका जो जुनून है कि हमें अपना स्वदेशी भारत बनाना है, तो हम लोग पूरे ड्राइव हैं। और गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम निकाली है उसके माध्यम से ये लोकलाइजेशन और बढ़ेगा और आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट धीरे धीरे इंपोर्ट को कम कर रही है, तो इससे हमको और प्रोत्साहन मिलेगा। और हम लोग निरंतर इस यात्रा में साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और एक दिन हम पूर्ण रूप से स्वदेशी भारत बनाएंगे। स्वदेशी गाड़ी, स्वदेशी मोटरसाइकिल, स्वदेशी 3 व्हीलर विदाउट एनी इम्पोर्ट। जी। और आपने जो स्लोगन दिया है कि ड्राइविंग द न्यू एम्बिशन फॉर इनोवेशन, और तो ये इनोवेशन किस तरह से R&D पर जो काम नहीं होता है, खास करके जो एक्सीडेंट प्रोन जो है एरिया हैं, सड़कें हैं, तो उनको बचाने के लिए कंपोनेंट्स की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो उसमें R&D कितना काम करता है और उससे लेकर आप कहाँ तक आगे आए हैं? हम लोगों के पास कोई 750 लगभग लोग हैं R&D में, कुछ 300 पूना में, बाकी चेन्नई में, गुड़गांव में एंड यूरोप में, जर्मनी में। और ये सब लोग मिल करके ये देखते हैं कि किस तरीके से सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट हों। और हमारी टेक्नोलॉजी रहती है पेस के माध्यम से, पर्सनलाइज्ड और एडास और ऑटोमेशन एंड देन कनेक्टेड और इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इनके माध्यम से हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ज़्यादा कस्टमर को सुविधा मिले और सेफ्टी के रूप के अंदर में कोई एक्सीडेंट ना हो। एडास जो टेक्नोलॉजी आ रही है ये सेफ्टी को बहुत बेटर करेगी और सरकार भी इसके अंदर में बहुत प्रोत्साहन कर रही है कि सेफ्टी और एनवायरनमेंट के ऊपर में पूरा तरह से ध्यान दिया जाए। और हम लोग सब साथ मिल करके काम कर रहे हैं। और ये जो हमारा आज़ादी का महोत्सव हो रहा है, इसमें सब मिल के एक दूसरे के साथ काम करें,
बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से। और हम शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे कि आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आयोजक के द्वारा जो है उसके दरमियान ये प्रगति मैदान में मेला लग रहा है, उन्होंने भी आज़ादी के अमृत महोत्सव को याद किया है, पूरे भागीदारी हैं उसके साथ, भागीदार हैं। और इसी तरह से देखिए स्वामी विवेकानंद जी भी युवाओं के लिए जो संदेश दे गए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त प्राण बोधत, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं भारत के, उनके लिए भी एक मैसेज है कि लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो तब तक आप आगे बढ़ते रहिए। तो इस तरह से निर्मल मिंडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव को भी आपने याद किया। तो मैं जैसा बता रहा था कि इस तरह से जो तकनीक है उसकी हाईटेक जानकारी जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर, विजिटर्स और जो भी तमाम कंपोनेंट लवर्स हैं वो आकर ले रहे हैं। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में जो 16वां ऑटो एक्सपो का कंपोनेंट फेयर चल रहा है उसमें आरजेएस फैमिली भी आई हुई हैं और लोगों ने इस फेयर को देखा भी है और बहुत सारे वाहनों के कल पुर्जे हैं वो प्रदर्शित किए गए। तो आरजेएस फैमिली क्या कहना चाहेगी, आइए प्रतिभा दीक्षित जी से जानते हैं। सबसे पहले आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और भारत माता की जय। तो जैसे हमारा पॉजिटिव मीडिया का एक टैगलाइन है कि सकारात्मक भारत, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे आके जो देखा है, जो मैंने अपनी आंखों से जो कोशिश की गई है कि एक्सपोज करने की, तो जो भी गाड़ियों से या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक चीज़ यानी कि छोटे से एक पुर्जे को कैसे किसी तार से जोड़ा जाता है, वो तार जो होता है उसको तक यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक नज़ारा दिखाते हैं कि 2 से 5 जो नया हॉल प्रगति मैदान में बना हुआ है उसमें ये कंपोनेंट्स का मेला लगा हुआ है। इसके साथ ये जानकारी देंगे कि 16वां ऑटो एक्सपो का मोटर शो जो है वो प्रगति मैदान में नहीं है, वो है एक्सपो मार्ट जो ग्रेटर नोएडा में है वहाँ लगा हुआ है और 13 से 18 तक आप जा सकते हैं वहाँ पे, नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के पास है। तो दिल्ली के प्रगति मैदान आप आना चाहें तो फ्री शटल सर्विस है गेट नंबर 10 से जो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है, और इसके अलावा जो आपका 4 नंबर गेट है वहाँ सामने पार्किंग करके भी आप गेट नंबर 4 से आ सकते हैं। और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको ये हॉल नंबर 5 का दृश्य आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे तमाम तरह के विजिटर्स, डेलीगेट और जो कंपोनेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो देश भर के यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये नज़ारा है, दिखाना चाहेंगे कंपोनेंट्स फेयर का जो प्रगति मैदान में है, ये 15 जनवरी तक आप देख सकते हैं 2023। इस तरह के कंपोनेंट्स आपको डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नई नई तकनीक की जानकारी जो है आप बताने वाले लोग भी हैं, कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक विजिटर हैं, विजिटर भी देख रहे हैं लोग इन उत्पादों को और जिसे जो चाहिए उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और एक इंटरेक्शन का भी सेशन हो रहा है। I don't know which category of the vehicles you are talking, but what we are talking about is you will have this condenser unit, you have a radiator unit. The radiator is used for the traction motor cooling, not only for the traction motor what cooling. kilowattage? We talk about kilowatt capacity for the traction motor starting from kilowatt in heat rejection or kilowatt in terms of power. This is for what heat dissipation? What is the capacity? You can go from heat dissipation of 2-3 kilowatts to around 20-25 kilowatts. So the maximum capacity for this radiator is 22? This goes to 20 kilowatts. Okay. And similarly for the condenser. तो इस तरह से नई नई जानकारी जो है वहाँ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं कंपनियों के वो यहाँ पर दे रहे हैं। ये इंटरेक्शन जो है अपने आप में ज्ञान की वृद्धि करता है और कंपोनेंट्स के बारे में अच्छी तरह से जो नई तकनीक आई है उसके बारे में जानने का भी अवसर होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा एसी हॉल है और इसमें कंपनियों के उत्पादों के डिमॉन्स्ट्रेशन किए गए हैं, जिसकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से यहाँ पर जो कंपोनेंट्स के ट्रेडर्स हैं और विजिटर्स भी जो जानना चाहते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इंटरेक्शन भी कर रहे हैं।
एक बार फिर से बताना चाहेंगे, मोटर शो जो है वो ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में लगा हुआ है और 13 से 18 जनवरी 2023 तक आप देख सकते हैं। ये दिल्ली का प्रगति मैदान है जहाँ पर कि कंपोनेंट्स फेयर लगाया हुआ है। तो कंपोनेंट्स के बारे में जिसे भी जानकारी चाहिए वो प्रगति मैदान में आ सकते हैं। 12 से 15 जनवरी 2023 ये जानकारी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, आरजेएस वाणी द्वारा दी जा रही है, ताकि हमारे भारत में जो लोग भी, क्योंकि बहुत ही मेहनत से इस तरह अरेंजमेंट किया जाता है और इस तरह की जो तकनीक है उसको देखने का, जानने का एक नज़दीकी रिश्ता बनता है। नज़दीक से आप इस तकनीक को देख सकते हैं। कुछ बताना चाहेंगे अपने कंपोनेंट्स के बारे में? हमारे कंपोनेंट्स तो वाटर पंप है जो कि ट्रैक्टर और ट्रक के लिए हम बनाते हैं, और हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट यूएसए में है। जी, पहली बार आए या पहले आते रहे हैं? नहीं, ये पहली बार पहले आए हैं। तो बताएं, आपकी क्या उम्मीद रहती है इस तरह के फेयर से? नहीं, हमारी उम्मीद यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री से जितना तो आप इसके लिए कुछ अलग चीज़ लेकर आए हैं जो पूरे इंटरनेशनल फेयर में दिखाएं? हमारी प्रोडक्ट तो वैसे बनाते हैं लोग, पर हमारी रेंज जो है वो एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट के लिए, तो ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी होती नहीं। जी जी, तो इस तरह के मेले में क्या उम्मीद होती है कि बायर्स वगैरह की? बायर्स आउट ऑफ इंडिया जितने ज़्यादा हो हमारे बिजनेस के लिए उतना अच्छा है। और इस तरह से जो मशीनें हैं उसको देखने का मौका कंपोनेंट फेयर में मिलता है। गाड़ियों के अंदर लगे हुए कंपोनेंट यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। ये सबसे बड़ी खासियत कंपोनेंट फेयर की होती है, इसलिए कंपोनेंट फेयर में लोग आते हैं, देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, बातचीत होती है और यहाँ से बिजनेस जो है आगे प्रमोट होता है। जय हिंद। हम लोग आज़ादी की अमृत गाथा का ये 116वां कार्यक्रम ऑटो एक्सपो थीम पर कर रहे हैं और ख़ास करके जो ईवी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इको फ्रेंडली होते हैं और आने वाले युग का भविष्य ये हैं। तो सभी भारत के भाई बहन ये मान लें कि आने वाला जो युग है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। और बहुत सारे जो वाहन निर्माता थे उन्होंने ये बताया कि जो बैटरी है आने वाले दिनों में सस्ती हो जाएगी, ऐसी रिसर्च हो रही है।